ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇज़ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਵੋਲਿਊਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਅਰਲੀਅਰ ਅਟੈਂਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਟਰਾਈਏਡ ਫਸਟ, ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਟਰਾਈਏਡ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 3 ਟਰਾਈਏਡਸ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਕਰੀਏ, ਆਊਟਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਲਿਥੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਲੈ ਲਿਆ 7 ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 39 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ weight ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਦੋ ਆਊਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ weight ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਏਡ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈਏਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਔਕਟੇਵ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਕਟੇਵ ਮਤਲਬ 8। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ weight ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, 8 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੋਥਰਮੇਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਲੋਥਰਮੇਅਰ ਅਗੇਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਟੋਮਿਕ weight ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਟੋਮਿਕ weight ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ weight ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ 7 ਇਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 9 ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡਸ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੀਰੀਅਡਸ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ 7 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਔਰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ग्रुप। सो इत्थे इन्हें क्या लेती है प्रॉपर्टी, किस चीज़ नूं लेती है बेटा, एटॉमिक वेट, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। आपां जिद्दां आपां मॉडल दे अंदर कीता सी रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। रदरफोर्ड ने एक बेस प्रोवाइड करता सीगा कि सेंटर दे अंदर न्यूक्लियस है, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने जस्ट बोहर ने मॉडिफाई किया। उदां ही बेटा जिहड़ा बेसिक ढांचा है पीरियोडिक टेबल का, वो मेंडलीव साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया। जस्ट इहदा जिहड़ा ड्रॉबैक सीगा वो ये सीगा कि इन्हें प्रॉपर्टी नूं बेस मन्निया एटॉमिक वेट नूं, जबकि जिहड़ा अज आपां एक्सैप्ट करते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट मन के भी बेटा इन्हें काफ़ी जिहड़ा एक स्ट्रक्चर जिहड़ा रफ स्ट्रक्चर कह लो, जिहड़ा काफ़ी हद तक अज भी आपां एक्सैप्ट करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल का प्रोवाइड किया सीगा। सो पीरियड्स बेटा 7 हुंदे हैं, दे आर नंबर एज 1 to 7, क्योंकि जिहड़े ग्रुप है बेटा वो रोमन नंबरिंग हुंदी है और इन्हां दी सिंपल 1 to 7 इस तरीके की नंबरिंग हुंदी है। पीरियड्स की नंबरिंग इस तरीके नाल, ग्रुप्स 9 है, दे आर 1 to 8 एंड 0 ग्रुप। सो जिहड़ा बेटा फर्स्ट पीरीयड है सानू पता उहदे अंदर 2 ही एलीमेंट हुंदे हैं, जदों आपां इदां चलदे हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो फर्स्ट पीरीयड दे अंदर केवल 2 एलीमेंट है, इट इज़ दी शॉर्टेस्ट पीरीयड। जिहड़ा सैकेंड एंड थर्ड पीरीयड है दोनों के अंदर 8 एलीमेंट्स होंगे हैं, दे आर नोन एज शॉर्ट पीरीयड। इस तरीके नाल फोर्थ एंड फिफ्थ पीरीयड 18 एलीमेंट ईच, दे आर लॉन्ग पीरीयड्स। सिक्स्थ पीरीयड 32 एलीमेंट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरीयड। और जिहड़ा बेटा सेवंथ पीरीयड है दैट इज़ इनकम्पलीट, उहदे अंदर रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स होंगे हैं, दैट कंटेन्स 28 एलीमेंट्स। इसी तरीके नाल बेटा जिहड़े ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स ऊपर ते नीचे की तरफ, दे आर 9 इन नंबर्स और दे आर डेजिग्नेटेड एज 1 to 8 एंड 0। सो बेटा जिहड़ा 0 ग्रुप है उहदे अंदर इनर्ट गैसेज होंदियां जिहड़ियां रिएक्ट नहीं करदियां, जिहड़ियां सब तो लास्ट दे अंदर होंदियां हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। और ये जिहड़ियां होंदियां ये मेंडलीव दे टाइम च नोन नहीं सीगियां, इनू ग्रुप नू नाम दे दिता सीगा 0 ग्रुप। बाकी जिहड़े ग्रुप है दे आर 1 to 8 नॉर्मल एलीमेंट्स इन्हां दे अंदर है। इन्हां दे भी अगे 2 ग्रुप डिवाइड है ए एंड बी, और दोनों दे अंदर 3-3 एलीमेंट दे 3-3 सैट हैगे हैं। सो बेटा इहदे अंदर आंदा इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सब तो पहला तो बेटा सिंपलीफाइड वे सीगा, सिस्टमाइज स्टडी दे बेस ते एलीमेंट्स दी हो सकी। दूजा इट हेल्प्ड इन करैक्टिंग एटॉमिक वेट ऑफ एलीमेंट, इहदी हैल्प दे नाल कई एलीमेंट्स दे जिहड़े एटॉमिक वेट है वो करैक्ट किए गए। तीजा बेटा मेंडलीव नूं जिहड़े एलीमेंट्स का नाम अपने टाइम च नहीं पता लग्या, बट उन्होंने एक गैस सीगा कि इत्थे एक एलीमेंट आना है जिहदी प्रॉपर्टी उपरले एलीमेंट नाल मिलती है, उत्थे उन्हें खाली थां गैप्स छड्डते जिहड़े कि बाद च फिल हो गए। सो बाद वाले साइंटिस्ट को इन्नी मेहनत नहीं करनी पई क्योंकि मेंडलीव ने उत्थे ऑलरेडी स्पेस छड्डिया होया सीगा, गैप छड्डे हुए सीगे, जिहड़े बाद च एलीमेंट्स डिस्कवर होए उन्होंने गैप्स के अंदर फिट कर दिता गया। सो ये बेटा 3 जिहड़े मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दे। अगला पॉइंट आता बेटा डिफैक्ट। इस मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफैक्ट किहड़े रह गए। हुण बेटा पहला डिफैक्ट जिहड़ा इंपॉर्टेंट है वो अज दे पीरियोडिक टेबल च भी है, दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सर्टेन। पक्की नहीं है हाइड्रोजन की पोजीशन। क्यों बेटा हाइड्रोजन नूं आपां अलग तो लिखते हैं, इत्थे हाइड्रोजन लिखते हैं, दैन वी राइट डाउन हीलियम, दैन लिथियम, बेरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके नाल। सो बेटा हाइड्रोजन नूं अलग पोजीशन क्यों दिती गई, क्यों नहीं हाइड्रोजन इत्थे हैलोजन्स दे उत्ते लिखिया गया, क्योंकि जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन दी वो अल्कली मैटल्स नूं भी रिजेंबल करती है, फर्स्ट ग्रुप नूं भी रिजेंबल करती है, और इधर इहदी प्रॉपर्टी हैलोजन्स नूं भी रिजेंबल करती है, जिहड़ा कि आपां लास्ट दे इनर्ट गैसेस दे नाल वाला ग्रुप हुंदा है। सो अगर आपां हाइड्रोजन नूं इत्थे रखण दी बजाए हीलियम दे नाल इधर रख दे तो पीरियोडिक टेबल ज़्यादा सिस्टमेटाइज्ड बनना सी, भी इत्थों शुरू हो रहा है हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद बाकी एलीमेंट्स आ रहे हैं। सो हाइड्रोजन नूं इत्थे अलग क्यों रखा गया, ये अज भी क्वेश्चन मार्क है। दूजा एक पासे तो आपां कहंदे हैं कि ये जिहड़ा पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। अगर बेटा एटॉमिक वेट एटॉमिक मास के उत्ते पीरियोडिक टेबल बेस है तो आइसोटोप्स नूं अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए सीगी। जिद्दां आपां एटॉमिक स्ट्रक्चर च पढ़िया आइसोटोप्स क्या है 1H1
1H2 1H3 एटम्स ऑफ द सेम एलीमेंट जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है। सो अगर ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेस पर बनया होया है तो बेटा हाइड्रोजन नूं 3 पोजीशनस देनियां चाहिए सीगियां, हर एक एलीमेंट के आइसोटोप नूं अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए सी, बट इदां दा नहीं होया। सो ये इस टेबल की एक कमी है। अगला बेटा नो सैटिस्फैक्टरी पोजीशन फॉर लैंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। जिदा बेटा आप मेन पीरियोडिक टेबल करते हैं तो लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स नूं टेबल के नीचे पोजीशन दी गई है, जबकि उन्होंने जी कॉन्टीन्यूटी एटॉमिक नंबर की सेम उपर वालियां दे नाल ही हुंदी है, बट उन्होंने अलग तो पोजीशन नीचे क्यों दी गई, इट इज़ नॉट क्लीयर। दैन ये अंदर मैटल्स नूं नॉन मैटल्स तो अलग नहीं शो किया गया, एक्टिव मैटल्स नूं इनएक्टिव तो अलग नहीं शो किया गया, नॉर्मल मैटल्स नूं ट्रांजिशन तो अलग नहीं शो किया गया। सो ये बेटा कुछ ड्रॉबैक सीगे, और मेन ड्रॉबैक जिहड़ा कि न्यू जिहड़ा असीं पीरियोडिक टेबल अज दी डेट च एक्सैप्ट करते हैं उहदे नाल आया कि इट वॉज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट, जबकि जिहड़ा अज आपां पीरियोडिक टेबल एक्सैप्ट करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। सो बेटा जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स फर्स्ट। ग्रुप्स पीरियड्स जिद्दां मैं तुहानूं इत्थे भी समझाया है, हॉरीजॉन्टल रोज पीरियड वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स ये किन्ने है, किन्ने किन्ने एलीमेंट्स है, इन्हां चों एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रुप्स बारे और इन्हां दे डिफैक्ट्स बारे। नैक्सट आपां लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नैक्सट लैक्चर च करांगे। थैंक यू।